Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I guess you are fine. I'm fine too. Alright, so here we are. Welcome to my channel English is Easy. And you are learning English at home, and I guess you are enjoying it too. Alright, so this is beginner level. We have lecture 17 today, and today we are going to talk, learn, study regarding grammar. So what we have got today? Today we have got demonstratives. Okay? This, that, these, and those. We have learned it in very basic classes. This is an apple and that is an elephant. Alright, so today we are going to learn how we can use it correctly grammatically, and what are the different uses of these. Okay, so let's start. Here we are, demonstrative. First of all, let's understand the word demonstratives. The word demonstratives का मतलब क्या है? The demonstrative word जो है वो निकला है demonstrate से. Demonstrate has many meanings, but according to the topic, demonstrate means here to indicate, इशारा करना, okay, to explain, to point out, to specify, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताना. In other words, we also listen demo. Okay, demo is basically what we are explaining something. So that is something related. उससे भी कुछ मिलता जुलता है. But here demonstrative means we have some words in grammar. हमारे पास कुछ word है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को point out करने के लिए. This, that, these, and those. Okay, we have. So we use it to basically tell about something or to point out something. What we are talking about, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. So let's keep it simple. We use demonstratives. Basically, demonstratives are the words which we use to indicate anything. किसी भी चीज़ के बारे में इशारा करने के, किसी चीज़ के बारे में निशानदेही करके बताना, okay? So या किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके बताने वाली चीज़. So we use demonstratives. Okay? There are different definitions you can see, you can find in grammar books, but this is the easiest one what I find. Okay, so let's go on. What does the rule say? What is this? A pronoun that points out a particular noun. Demonstrative basically एक pronoun है. Pronoun हमने पढ़ा था. What is a pronoun? Pronoun is a word which is used in place of noun. तो pronoun क्या है? वो तो noun की जगह हम इस्तेमाल करते हैं. So basically वही चीज़ है. But यहाँ पर क्या हो रहा है? Point out. Point out means that हम किसी भी चीज़ की तरफ निशानदेही कर इशारा करके मतलब पॉइंट आउट करना. लाइक आई जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक आई एम पॉइंटिंग आउट. मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ? इस वर्ड को, नाउन, क्योंकि मेरा इशारा इस तरफ है. पॉइंटिंग आउट. ओके, नॉर्मली हम जाते हैं मार्केट में तो हम क्या पॉइंट आउट करते हैं? दैट ड्रेस, दैट पर्स, ओके, दैट शर्ट, हम पॉइंट आउट करते हैं. ओके, सो सेम लाइक दिस, जब हम पॉइंट आउट करते हैं किसी भी नाउन, जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो बेसिकली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है. तो ये दिस, दैट, दीज एंड दोस ये एक्चुअली प्रोनाउन है जो नाउन को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आई गेस क्लियर नाउ? गुड. वी डिस्टिंग्विश मतलब फर्क करना. ओके, वी डिस्टिंग्विश इफ द नाउन और नाउन्स कैन बी सिंगुलर, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. इज नियर और फार. अब हमारे पास जो है वी हैव डिफरेंट सिनेरियोज, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं. सम ऑब्जेक्ट्स, सम नाउन्स आर नियर, हमारे करीब होते हैं, एंड सम नाउन्स आर फार. तो हम उसका फर्क करते हैं. ओके, वी हैव डिफरेंस, वी डिस्टिंग्विश इट. हाउ? जो हम बात करें नियर की, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे करीब है, हम आसानी से उसे टच कर सकते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टच द मार्कर, I can touch my head, forehead, okay. I can touch my mic, I can touch the whiteboard, okay. So something which are near, जो हमारे करीब है. We use this for singular. एक होगा तो हम this इस्तेमाल करेंगे. एक से ज़्यादा होगा plural, जमा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? We will use these. For example, this is a marker and these are markers, for example. Okay, so here we are.
We have example. This is the whiteboard. Now see, this is close to me. I can touch it. So if say, boys, students, this is whiteboard. This is a whiteboard. A whiteboard because it is one. Now if let's get the second example. These are markers. See, it's near to me. I can touch it. So these are markers. I am indicating here. These are markers. मैं क्या करूँ? Point out करूँ. These are markers. These are not pencils. These are not pens. These are markers. This is a whiteboard. Okay. This is my hand. Okay. Okay. And we have different examples. We have. Okay. And can give different examples. This is my pocket. All right. Fine. So I have nothing in my pocket right now. So here we go. We go like this. तो जब भी हम किसी करीब चीज की ऐसी चीज जो हमारे करीब है, that is near us, जो हमारे करीब है, एक हो तो हम इस्तेमाल करेंगे this, और एक से ज्यादा हो plural, we will use these. Repeat after me. This, these, this. पढ़े मेरे बात. This, these. Good. जब हम बात करें दूर की, far, करीब, near, दूर, far. Near, far, near, far. तो जो कोई चीज दूर दूर कोई किसी ऐसी चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो करीब है, सिंगल है तो दैट, मतलब एक हो तो दैट, एंड एक से ज्यादा हो तो those. How? See example. That is a camera. And now see, camera is not close to me. That is far. So that is camera. Okay, there is a camera, and those are birds. You can listen the voice. Those are birds there. So जब हम करीब की बात करें तो this and these, और जब हम दूर की बात करें तो that and those. Okay. So and very important part, जब हम किसी चीज की बात करेंगे तो हमें इंडिकेट करना जरूरी है. लाइक हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या उसकी तरफ हम देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ like this is a marker. मैं वो देख ऊपर रहा हूँ और मैं बता मार्कर के बारे में रहा हूँ, तो that is a mismatch. Okay. There is no matching. So whenever it's very important, whenever you are talking about anything, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, point out कर रहे हैं या demonstrate कर रहे हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो होना, चाहे वो आपका हाथ का इशारा हो, चाहे वो आपकी नजरें उस तरफ हो, anything that is important. Okay, if I say this is a whiteboard, मैं देख पा रहा हूँ लेकिन मेरा इशारा इस तरफ है, so that is very important. मैं उधर देख रहा हूँ, बाद में इसी कर रहा हूँ, that doesn't make sense. Let me give example. If I say this is a mic. No, this is a mic. Are you getting? So see, it doesn't make sense. So very important. बोलने के साथ इंडिकेशन भी जरूरी है, इशारा भी जरूरी है, उस तरफ तवज्जो भी जरूरी है. That's then it's possible कि जो सुनने वाला है जिसको आप बता रहे हैं उन्हें समझ आएगा. Very important. Okay. So this and these, that, these and those. I guess you have learned. Very simple, very easy. करीब हो तो this and these, and दूर हो तो far, that and those. Very good. We have different uses of these words. Okay, और भी इस्तेमाल है to make it very important, because it's very important. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लेकिन हम बार-बार mistakes करते हैं. So let's learn it. Try to understand. I will go slowly so that you can understand and pick the lesson first time. पहले आप pick कर लें. With nouns, हम इन्हें noun के साथ इस्तेमाल करते हैं. कैसे? जब भी हम noun के साथ इस्तेमाल करते हैं, whenever we use it with a noun, remember ये noun से पहले इस्तेमाल होता है. Foreign noun से पहले ही word, noun से पिछला word क्या होगा? आपका demonstrative होगा. This, that, मतलब noun के साथ gap नहीं होगा. Noun के सिर्फ फौरन पहले, like जैसे ही demonstrative होगा उसके फौरन बाद noun आएगा. और इस्तेमाल वही चीज करते हैं to specify person और persons. एक person, एक person, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. Thing or things we are talking about. जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हमने noun के साथ इस्तेमाल करेंगे तो noun से पहले क्या आ जाएगा? This, that, or these and those. For example, I like this marker. I like this marker. These mangoes are juicy. For example, I have mangoes in my hand. These mangoes are very juicy. Or these mangoes are very juicy. Yummy. I love mangoes. Okay. I love that dress. For example, you are in market. You are standing in the mall and you are telling, I love that dress. Please give me that dress. So I love that dress. Like you are talking about that. तो देखिए रूल क्या है. रूल कहता है कि this, that के फौरन बाद नाउन आएगा. Right next to the word foreign. Okay, no space there. It means space से मुझे देने के आप मिलाकर लिखें. I mean to say that noun से like demonstrative word के फौरन बाद क्या आएगा?
नाउन आएगा. आई थिंक यू आर क्लियर नाउ. Those boys are my friend. For example, you are standing somewhere and आप अपने फ्रेंड को कहेंगे वो जो ना लड़के, those boys because they are far. So those boys are my friend. Those two people are my class fellows. Okay? So like this. So जब हम noun का इस्तेमाल करेंगे तो noun से फौरन पहले क्या होगा? Demonstrative होंगे हमारे. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि वो प्रोनाउंस ही होते हैं, वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, सो वी डोंट नीड टू राइट और से द नाउन. वेरी कॉमन, जब भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन बेसिकली क्या है? नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और नाउन हट जाता है. तो ये कह रहा है कि प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को. प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, कोई नई बात नहीं है. तो हम करते क्या है? वी डू नॉट नीड टू राइट और से द नाउन. तो हमें जरूरत नहीं होती नाउन को ना लिखने की, नाउन को बोलने की. सर वही नहीं बात है, तो ऐसे फर्क क्या? नो, लेट्स सी. दैट इज बिट लाइक दैट इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो उस फर्क को समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इसको मजीद समझते हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग. रिप्रेजेंटिंग मतलब नुमाइंदगी करना, उसके बारे में बताना, रिप्रेजेंट करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ की नुमाइंदगी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी जगह लेता है, उसकी लाइक उसका काम करता है. आई गेटिंग समटाइम इट हैपेंस दैट मम्मा नहीं होती तो आप या आपकी सिस्टर, कोई भी उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी जगह, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता. आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, बाज़ औक़ात जब कोई शख्स नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, तो उसकी जगह कोई और काम करता है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है? उसी शख्स को, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. क्लास में टीचर नहीं होता तो मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है क्लास को. ओके, फॉर सेम लाइक दैट, अगर नाउन नहीं होगा तो नाउन को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोनाउन करता है. हमाद हो या ही हो, तो हमाद की ही प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. तो सेम लाइक दिस, बॉस ना हो तो बॉस के जो है एम्प्लॉइज उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक उस कंपनी को. एक्स वाई जेड, मेनी एग्जांपल्स. सो आई गेस रिप्रेजेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड यू हैव अंडरस्टूड. समझ गए होंगे, कितना ज़्यादा समझा दिया. They are representing a thing without actually specifically mentioning the thing. वो represent करते हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं without actually specifically mentioning the thing. उस चीज को बताए बगैर. What does it mean? Specifically कहते हैं मखसूस, खास करना. Mention कहते हैं दिखाना, दिखाना, ठीक है? The thing. अब मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मार्कर की, लेकिन मैं अपने जुमले में मार्कर का तस्करा ही नहीं कर रहा. कैसे? No point. For example, अब इसको हमने सिचुएशन से एग्जाम्पल, सिचुएशन से हमें जो है स्टडी करना है. मार्कर I must have prepared. Let's example. Let's discuss it with example. For example, सिचुएशन कहते हैं कि एग्जाम्पल हमने लिए कैसी सिचुएशन, ऐसा लाइक हमने डेमो अपना माइंड, लाइक हमने ये सोचना है, सपोज करना है while eating an ice cream, आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं. ओके, say this is delicious. अब आपको कोई इशारा नहीं है, आप बस खा रहे हैं. this is delicious, तो मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो आप खा रहे हैं, आइसक्रीम. Second example, while looking at sunset. अब normally when you go when you have when you look sunset or when you go seaside, it's very beautiful view. तो आप देख रहे हैं sunset, सूरज गुरु होने का वक्त, like it's very beautiful, it's amazing. तो आप देख that's beautiful. तो आप बाद वाला इशारा करते हैं that is beautiful. मतलब आप जिस तरह आप देख रहे हैं, तो आपने अपने जुमले में बताया नहीं कि that sunset is beautiful or that view is beautiful. You are simply saying that is beautiful. तो मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो चीज़ आप देख रहे हैं. More examples. I have a marker. For example, that is a pen. ये हमारा पेन, ये मेरा पेन है, मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ और ये सही नहीं लिख रहा. Like it is not using properly. काम नहीं कर रहा. तो I just say it is this is like this is bad. बेसिकली मैंने this is bad का मतलब क्या, मैं किसको बैड कर रहा हूँ? मार्कर को या पेन को, क्योंकि वो जो चीज़ है वो काम मुझे मजा नहीं कर रही. Are you getting? तो द पॉइंट इज, जरूरी नहीं हम फोकस होकर खुलकर इशारा करें या खुलकर बताएं या बिल्कुल ही पॉइंट आउट करें.
ऐसा भी हो सकता है हम नाउन इस्तेमाल ना करें, नाउन इस्तेमाल होता भी और नाउन इस्तेमाल नहीं होता। जब नाउन इस्तेमाल नहीं होता तो बेसिकली आपको समझना होता है, उस हालत को देखना होता है कि बात किसके बारे में हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गिव द फाइनल एग्जाम्पल रिगार्डिंग क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स में एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल शोएब अख्तर बॉल्स एंड इट इज, और वो आउट कर देते हैं, बिंदास बोल्ड कर देते हैं, दिस इज ऑसम। तो दिस इज ऑसम मतलब क्या है, मैं शोएब अख्तर की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, बाबर आजम इज प्लेइंग क्रिकेट और उसने शॉट खेला, दैट इज ब्यूटीफुल। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की नहीं, बाबर आजम की शॉट की, दैट्स अ नाउन। ओके, सो इट हैपेंस। इस तरह हम जो है जब भी बात हम यूज करते हैं, बोलते हैं ये वर्ड, कभी कभार समटाइम्स हम नाउन को मेंशन करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बार बार नाउन को मेंशन नहीं करते हैं, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और भी यूजेस हैं दिस दैट दीस दोस्त के। हम इसे आइडेंटिफाइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग पीपल, हम लोगों का तारुफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हे गाइस दिस इज हम्माद, हाउ आर यू, दिस इज हम्माद, लाइक आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दीज आर माई फ्रेंड्स, दिस इज माई फ्रेंड। लाइक हम जब भी हम नॉर्मली हम जब लोगों को तारुफ करवा रहे होते हैं तो हम जो है डेमोस्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। दोज आर माई स्टूडेंट्स, और नॉर्मली दोज आर माई अंकल्स चिल्ड्रन, फाइन। तो दिस दैट दोज का एक और इस्तेमाल क्या है, हम लोगों का तारुफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम इज इम्पोर्टेंट, या हम नॉर्मली टाइम को भी टाइम को भी बताने के लिए, टाइम को डिस्कस करने के लिए भी हम we use this and that. How, for example, this is beautiful day, this is a beautiful day। तो मैं क्या अभी की टाइम की बात कर रहा हूँ, this evening is awesome, yeah, this time is very lovely, okay, that evening was fantastic। तो नॉर्मली हम टाइम पीरियड को भी स्पेसिफाई करने के लिए हम दिस दैट दिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था थोड़ा सा, आई गेस समझ आ गया होगा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा ही ओके फाइन। सो टाइम टू एंड क्लास, लेक्चर इज ओवर एंड आई गेस यू हैव लर्न, समझ आ गया होगा आपको। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। असाइनमेंट्स आर देयर, डोंट वरी, वी हैव 2 असाइनमेंट्स ओनली, लिसन, आंसर एंड डिक्टेट। आई विल शेयर वन ऑडियो क्लिप, ओके, एक ऑडियो क्लिप शेयर करूँगा, आपने उसे सुनना होगा, आंसर देने होंगे कुछ क्वेश्चन के और उसको डिक्टेट करना है, ठीक है, लिसन एंड डिक्टेट, लिसन एंड डिक्टेट, एंड आई विल शेयर द आंसर्स हियर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, मेक 12 एग्जांपल्स ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव्स। आपने 12 एग्जांपल्स बनानी है, किस तरह, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, अच्छे से समझ लें आप। 6 इसकी बनानी है और 6 इसकी बनानी है। हाँ, अब देखिए मैंने यहाँ पर नाउन शब्द बनाई है, सो 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये 4 है, आपको इस तरह 6 बनाना है, 6 इसके बनाने हैं और 6 इसके बनाने हैं। यहाँ पर किस तरह बनाएंगे, इससे हमारे सिचुएशन बनाई ना, सिचुएशन, या आप इस तरह सिचुएशन डालेंगे, लाइक ये हो रहा है, लाइक व्हाइल ईटिंग एन आइसक्रीम, लाइक व्हाइल डूइंग एन असाइनमेंट, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप सिचुएशनल भी, मैंने 2 एग्जाम्पल बनाई, इस तरह आप इसकी 6 एग्जाम्पल बनाएंगे, दिस दैट दीज दोस्त को मिक्स करके। सो थैंक यू सो मच, इट्स इनफ एंड टाइम टू से गुड बाय। आई थिंक आई होप दैट दिस लेक्चर will be hopefully beneficial for you, but before going I would like to have a request that if you have not subscribed my channel, do it right now, and till then take care, Allah Hafiz.